In the year 2005, YouTube was launched and full with the gap between creating and sharing. And today in 2019, it has than a billion user, almost the one. ये कहाँ से जाएगा? 1/3 population of the internet, and the total number of the monthly active user is around 1.9 billion, and today 5 billion videos are watched every day. ठीक है, ये YouTube के बारे में बता रहा है, उसकी हिस्ट्री बता रहा है. इंटरनेट यूजर बाय कंट्री. इंटरनेट यूजर बाय कंट्री, आप इस पिक को देख सकते हैं. यहाँ पर यूएसए के 74.7% लोग हैं जो यूजर्स हैं, इंटरनेट यूजर्स हैं. ब्राजील के 34.3% है, यूके के 48% है, फ्रांस के 66% है. अब ये उस कंट्री की पॉपुलेशन का हिस्सा बता रहे हैं कि किस कंट्री में से कितने परसेंटेज लोग जो हैं वो इंटरनेट यूजर्स हैं. जर्मनी का बता रहा है 67%, रशिया का बता रहा है 27%, चाइना का 22.4%, इंडिया का 71% और जापान का 73.8%, साउथ कोरिया का 76% और ऑस्ट्रेलिया का 18% जो है उनकी पॉपुलेशन है वो इंटरनेट यूजर्स हैं. मैम इसमें पाकिस्तान नहीं है? नहीं, इसमें पाकिस्तान नहीं है. वो तो गूगल पे सर्च कर लेना. बेटा म्यूट योर माइक्स प्लीज. मेथड एंड चैनल म्यूट करो प्लीज. टाइप ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग आर. ठीक है, अब आप देखें टाइप ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग. Type of online marketing are email marketing, blogging marketing, pay-per-click marketing, social media marketing, digital marketing and viral marketing. इसमें फॉरेक्स मार्केटिंग नहीं आएगा? वो भी ऑनलाइन मार्केटिंग ही है? नहीं, वो अलग है, वो मार्केट है. Email marketing. Email marketing is one segment of internet marketing which incorporates online marketing, view website, social media, blogs and more. ये सारी चीजें आप यूज टू होंगे ईमेल मार्केटिंग में. ईमेल्स आती होंगी ना आप लोगों के पास. बेटा आंसर एट द एंड कीजिएगा. जो भी क्वेश्चंस आपको हैं आप लास्ट में पूछिएगा, प्लीज बीच में बात करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करें. It's essential direct mail done electronically inside through the postal services. This kind marketing can be used to build relationship with customer or drive them away. ठीक है, अब जो मार्केट ईमेल है वो किस चीज का काम कर रही होती है? वो काम कर रही होती है आपको पैगामात पहुंचाने के लिए. ठीक है, तो उसमें भी आप देखेंगे, आप अगर अपनी जीमेल जाके खोलेंगे, आपकी जो भी ईमेल है, ईमेल आईडी पे आप लोग जाओगे तो आपके पास प्राइमरी ईमेल्स अलग होंगी और बाकी जो एड और सोशल सारी मीडिया की जो ईमेल्स हैं, नोटिफिकेशन है, वो एक अलग उनका एक अलग डायलिंग बॉक्स होगा ताकि आप प्राइमरी इस पे मेल पे जाएं और आपकी जो इम्पोर्टेंट ईमेल्स हैं वो ऊपर मतलब वो ऊपर अलग हो जाएं, वो जाहिर हो जाएं. क्योंकि ज्यादा ऐड आ जाते हैं तो फिर हम लोग उसमें उलझ जाते हैं कि अब हम कहाँ से ढूंढें. blogging, you are very much familiar about the blogging is a way to run a business. When it comes down to it, it's blog just a website. It allows to communicate with the audience and spread messages. Today many people are running their entire business on blogs. Business companies and even superstars are now using blogging system for a huge promotions. Blogging is launched in 1999 by three friends. Blogging is an ardent marketing tool has really blossomed in the last some years. PPC, pay per click, stand for, अच्छा ये यहाँ पे आ गया, pay per click, a model internet marketing in a way which advertisers pay a fee each time one
of their age is click essential. It is a way of buying visit to your site rather than attempting to earn. Those visiting organically search engine advertise is one of the most popular form of PPC. डिजिटल मार्केटिंग, ये हम मार्केटिंग के टाइप्स पढ़ रहे हैं उसी की सब हेडिंग से. Just use social media to direct people to other sites where can then hit them with the sales pitch. With regard to the internet, this is the promoting of brand using for form of online digital advertising channel to reach consumers. This include video channel, internet radio, mobile phone, display or banner, a digital outdoor and any other form of digital marketing. ये सारी चीजें ऊपर बता के जो आ रही हूँ यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में वही चीजें बता रहा है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो कैसे इंटरनेट के थ्रू काम करती है, कैसे किस चीजों से आप प्रमोट कर सकते हो अपनी ब्रांड को ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजिंग चैनल तक, कैसे पहुंचे कंज्यूमर्स. या अल्लाह, सॉरी. Viral marketing techniques that use a social network to produce an increase in brand awareness or achieve other marketing objectives, such as a product sale through self-replicating viral process. ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि ये इसका मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं. ये ब्रांड अवेयरनेस को अचीव करता है, आपको रिप्लिका प्रोडक्ट्स का प्रोसेस और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स का प्रोसेस बताने में. It can be a word of mouth delivering or enhancing by the networking effecting of the internet viral promotions में. एडा मॉडल आप लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा होगा. अप्लाइंग द एडा मॉडल टू ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, टेक द फॉर्म ऑफ वीडियो क्लिप, इंटरैक्ट, फ्लैश गेम, ई बुक, इमेज और इवन टेक्स्ट मैसेजेस. ये यहाँ पर अप्लाई किया जाता है. एक ये स्टैंड करता है AIDA, ये एक एब्रोवेशन बनाई गई है इन्होंने जिसमें A का मतलब है अवेयरनेस. अवेयरनेस मतलब इनिशियल पॉइंट वेयर यू ब्रांड एंड और अ बिजनेस रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्नॉलेज. जाहिर की बात है स्टार्टिंग में आपका जो बिजनेस है या आपकी जो ब्रांड है या आपका जो प्रोडक्ट है उसको कैसे पहचाना जाए, उसको मतलब उसकी अवेयरनेस के लिए होता है. ये आई का मतलब है इंटरेस्ट, जनरेटिंग थॉट एंड डिसीजंस अबाउट योर ब्रांड. जाहिर की बात है अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो अपनी ऑडियंस का उसमें अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उसमें आपको उसके फीचर्स, उसमें कुछ तो ऐसा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा ना जो अगली आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट लेने पे इंटरेस्ट डाले. ठीक है. डी क्या है? डिजायर. कम्युनिकेट योर मैसेज थ्रू द यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड ईमेल मार्केटिंग. A, action, the stage where the conversation is complete and baked to interest stage to retain them. The website responsible for this stage. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये where the conversation is complete and back to interest stage. अब जाहिर की बात है एक चीज है, एक ना इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने दी है, उस पर एक्शन क्या आ रहा है, आपका फीडबैक क्या हो रहा है. योर वेबसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेज. उसका अगले जो आपके क्लाइंट्स हैं उनका जो रिस्पॉन्स आएगा उस पर एक्शन आपको लेना पड़ेगा. मतलब कि वो अगर आपकी कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपको एक्शन में मतलब वो काम करके उन तक वो चीज कैसे पहुंचानी है, अभी आपका काम है. टॉप डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान. ठीक है, ये मैंने सर्च की है, ये कंपनीज शायद आप लोगों ने सुनी है, शायद नहीं सुनी हुई. ये मार्केटिंग की कंपनीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, मार्केटिंग करती हैं. ये ज्यादातर बेस्ट हैं इसके क्या कहते हैं आईटी की. वेबहिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये भी है, ये आपकी एडवर्टाइजिंग कंपनी. आप चाहें तो इन वेबसाइट्स को जो मैंने दी हुई है यहाँ पर इनको जाके विजिट्स भी कर सकते हैं ताकि जब आप आपकी स्क्रीन पे इनके फंक्शंस आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी किस तरीके से काम करती है. ग्लोबिक्स आईटी सॉल्यूशन पाकिस्तान, नीड हेल्प सेलेक्टिंग अ कंपनी. जोरियाज स्टूडियो, United Soul,
ग्रेट SEO सॉल्यूशन, सेल्स लीड्स, अनलिमिटेड। ठीक है, ये जो है कंपनीज है, ये यहाँ पर काम कर रही हैं डायरेक्ट मार्केटिंग क्या। ठीक है, ये टॉप 7 कंपनीज मिलना है। कंपनीज तो बहुत सारी थी, लेकिन मैंने उनमें से टॉप 7 कंपनीज ली हैं, और ये मैंने गूगल से ही ली है। आप वहां जाके इजीली जो है सर्च कर सकते हो, इसकी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हाउ द ऑनलाइन मार्केटिंग इंडस्ट्रीज इम्पैक्टिंग लोकल बिजनेसेस। ठीक है, अब ये बात आ जाती है कि ऑनलाइन मार्केटिंग इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट कैसे करती है लोकल बिजनेसेस को। द सर्च इंजन मार्केटिंग इंडस्ट्रीज इज प्रोजेक्ट टू रिच ओवर द $22 बिलियन by the end of 2012, a 19% increase from $19.3 बिलियन इन द लास्ट ईयर। जाहिर की बात है, आपको पता है कि ये बात भी आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तब भी उनका जो है ना रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब ये पॉलिसीज पे होता है कि एक क्लिक पे कोई पे, जैसे अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि क्लिक पे कर रहे होते हैं। कुछ कंपनीज की ये स्ट्रेटजीज होती हैं कि जैसे जैसे यूजर्स हमारी वेबसाइट्स विजिट करता जाएगा, तैसे तैसे उनके पैसे बनते जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि YouTube का चैनल बनाते हैं, सब्सक्राइब करवाते, जितने सब सब्सक्राइबर्स आई थिंक 1000 सब्सक्राइबर हों और 4000 व्यू हो आपकी वीडियो, तो फिर आपको उनका गोल्डन बटन मिलता है, या रजिस्ट्रेशन कुछ ये प्रोसेस है वो आपको मिलता है। तो इसी तरीके से वेबसाइट्स का भी कुछ इस तरीके से होता है कि 1 क्लिक पे वो ओपन होती हैं, तो उनकी रेवेन्यू जनरेट कुछ होता है, कुछ $1 मिलता है उनको, या कुछ उनको जो वो सॉफ्टवेयर या जो वो वेबसाइट बनाते हैं, नोट उनको जिनका बिजनेस होता है। 74% of a small business find online networking to be just valuable, as 58% reporting by the struggling to find value in the using Facebook to promote their brand and don't have a page at all. Number of companies struggling to take advantage of online resources. थोड़ी देर पहले मैंने यही एग्जांपल जहांगीर को दिया था कि अगर मैं अपना बिजनेस ऑफलाइन मार्केट में इसका एग्जांपल दिया था कि अगर मैं अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो जाहिर की बात है कि मैं उसकी मार्केटिंग ऑनलाइन ही स्टार्ट करूंगी एज कम्पेयर टू फिजिकल मार्केटिंग के। फिजिकली जाकर लोगों को बताऊं या क्या अपने प्रोडक्ट को प्रोमोट करूं, तो मुझे ज्यादा आसान तरीका क्या लगेगा, घर बैठ के उसी प्रोडक्ट को प्रोमोट करना थ्रू सोशल मीडिया की। फिर वो आप पे है कि आप कौन सा सोशल चैनल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टा यूज कर रहे हैं, स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, व्हाटएवर। लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या है, लॉन्ग टर्म सक्सेस है। अब यहाँ पर बात फिर आ जाती है कि जितनी आप फिर अपने प्रोडक्ट पे मेहनत करें, हम लोग अगर चीजें डेली अपडेट होती रहती हैं तो हम उस पे जाके उसको देखना पसंद करते हैं। जो जिस पेज पे पोस्टिंग वगैरह नहीं होती ज्यादा, वहां पर हम नहीं जाते। आप अगर नॉर्मली आप अपना एग्जांपल लें कि अगर इंस्टा या फिर फेसबुक पे अगर हम कोई पेज लाइक करते हैं, वो कोई भी पेज हो, जरूरी नहीं कि वो बिजनेस का ही पेज हो या क्या, भले किसी एक्टर्स का ही हो क्यों ना हो, तो हम उसके व्यूज देखते हैं, हम उसकी पोस्टिंग देखते हैं, पोस्ट देखते हैं कि वो कितनी पोस्ट कर रहा है, वो रेगुलर पोस्ट वगैरह करता है, तो हमारा भी इंटरेस्ट होता है कि हम उसका पेज विजिट करें, हम उसकी पिक्स वगैरह देखें। अगर साइलेंट है, वो कोई पोस्टिंग वगैरह नहीं कर रहा, तो हमारा भी इंटरेस्ट उसकी वॉल पे या प्रोफाइल पे जाने में नहीं होगा। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि आपको खुद को अपडेट रखना है। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको न्यू प्रोडक्ट अपडेट करनी होगी। अब अभी आप देखेंगे कि क्वारंटाइन का टाइम था, फेसबुक सब यूज करते हो आप लोग, तो सबको पता है कि होटल्स में डाइनिंग बंद है। ठीक है, बीच में काफी टाइम तक टेक अवे और होम डिलीवरी भी बंद थी, अब ये रमजान में ओपन हुई है। तो होटल्स ने क्या, उनके जो बिजनेस पेजेस थे, जाहिर की बात है ये भी एक काइंड ऑफ बिजनेस है, ठीक है, उन्होंने क्या अपने पेज पे पोस्ट करना बंद किया था? नहीं बंद किया था। वो कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई डील्स, कुछ ना कुछ ऐसा, इवन ग्रेटिंग मैसेज भी आप लोगों को दे रहे थे ताकि लोग हमारे साथ कनेक्ट रहे, हमारे रिलेशनशिप बने रहे। क्लियर? इस तरीके से होता है। और अगर आपका वो सक्सेसफुल है तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये चीजें करनी पड़ती हैं। आगे है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब पुल मार्केटिंग, पुश मार्केटिंग। पुल और पुश तो आपने सुना ही होगा, ये टर्म्स हमने बहुत पढ़े हैं बिजनेस में भी।
अब यहाँ पर पुल मार्केटिंग है, वेबसाइट एंड ब्लॉग आर अ पुल स्ट्रेटजीज। ठीक है, वेबसाइट्स और बुल क्या जाती है, वो पुल स्ट्रेटजीज में आती हैं। बुल्ड वेबसाइट एंड ब्लॉग, कंपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, द कंपनी ट्राइज टू डायरेक्ट कस्टमर थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग। आपको कंपनी जो है ना वो क्या करती है, पुल मार्केटिंग। जाहिर की बात है, अट्रैक्ट कंपनी करेगी ना, उसकी चीजें अट्रैक्ट करेंगी तभी तो हम उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, तभी तो खरीदेंगे। सच एज ए टीवी एड्स, ऑनलाइन बैनर एड्स एंड सोशल मीडिया, ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, पुल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी में आ जाती हैं। ऑनलाइन बैनर एड एंड रेडियो टीवी एड्स आर अदर फॉर्म ऑफ पुल मार्केटिंग। ये भी पुल मार्केटिंग का ही फॉर्म है। अब आ जाती है पुश मार्केटिंग की बात। सर्टेन ऑफर थ्रू योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ये जो वेबसाइट और पिछले पुल मार्केट का एग्जांपल दिया उसमें आपके साथ बहुत सारी चीज, सर्टेन जो ऑफर्स हैं वो आपके फेसबुक पे भी आ जाती हैं। अब आजकल तो बहुत आ रही हैं कि फेसबुक पे एड आ रहा होता है, आप लोग उस पर क्लिक करते हो तो हम क्या चले जाते हैं, गूगल में उसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। ठीक है, ये एक्सपीरियंस आप लोगों को हुआ होगा। पुश मार्केटिंग में आपकी क्या आ जाती है, ईमेल कैंपिंग आ जाती है। कंपनीज में पुश इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन मटेरियल डायरेक्ट टू एंड यूजर्स इन ईमेल डिफाइलर्स एंड जनरेटिंग डिमांड। Certain an email database potential customer and send them product announcement and the promotion directly. अब जाहिर की बात है, जो कंपनीज हैं उनको पता है कि भाई ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, तो जो भी कोई नई चीज आएगी चाहे वो एडवर्टाइज पब्लिकली कर रहा हो, लेकिन अगर वो उसका पोटेंशियल कस्टमर है तो वो क्या करेगा, उसको पर्सनल भी ईमेल कर देगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तो हम कभी कभी एड देखते हैं और कभी अगर कोई इंटरेस्टिंग एड, मतलब हमारे काम का कोई एड होगा तो हम उसको खोलते हैं, अदरवाइज नहीं खोलते। लेकिन अगर कोई बंदा स्पेशली आपको पर्सनल मैसेज कर रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्स करते हो। क्लियर, तो यहाँ पर ये बात आ जाती है पुल और पुश मार्केटिंग में। इफेक्टिव इंटरनेट मार्केटिंग, व्हाट इज वर्किंग फॉर मार्केटर्स। ठीक है, अब सोशल मीडिया कितना परसेंट वर्क करता है, 63%। 63% ऑफ कंपनी यूजिंग सोशल मीडिया से द सोशल मीडिया एट इंक्रीज मार्केटिंग इफेक्टिवनेस अमंग अदर बेनिफिट। क्यों, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तभी वो कह रही हैं, कंपनीज कह रही हैं 63% कंपनीज वो यूज कर रही है सोशल मीडिया। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि मुझे मेरी टारगेट ऑडियंस यहाँ मिल रही है, यहाँ पर मैं मार्केटिंग करूंगा तो ये मार्केटिंग मेरी इफेक्टिवनेस की तरफ आ रही है अमंग अदर बेनिफिट्स के। उसके बाद बोल रहा है 20% दैट टॉप 20 ऑफ B2B मार्केटर्स इन सोशल मीडिया लीड जनरेट इंक्रीज द रेवेन्यू बाय 20%। अब टोटल B2B मार्केटर्स में से 20% मार्केटर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं अपने रेवेन्यू। 300, the average budget spent on the company blogs and social media is nearly tripled in 3 years. आपको ये तो पता ही होगा ना, सुनते आ रहे होंगे कि कंपनीज जो होती हैं सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रही होती हैं, एडवर्टाइजिंग पर। ये सबको पता होगा, इसमें कोई भी न्यू बात नहीं है। 44% of marketers acquired a customer from a Twitter in 2012. 44%, ठीक है, 44% मार्केटर एक्वायर्ड कर रहे हैं कस्टमर कहाँ पर, ट्विटर पर। अब ये आ जाती है ब्लॉगिंग की बात। B2B कंपनीज एट अ ब्लॉगिंग जनरेटर 88 मोर लीड्स पर मंथ देन दोज हु डू नॉट। 57 इसमें 57% इसमें आ रही हैं वही पीछे वाली की पीछे की तरह के मार्केटर्स एक्वायर्ड कस्टमर ब्लॉगिंग। उसके बाद 77 कंपनीज विद 51 और मोर ब्लॉग्स आर्टिकल एक्सपी। अच्छा कभी ये मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी फिर आप लोग बोलना स्टार्ट हो जाएंगे। 55% companies that a blog have a 55% more websites to visitors. ये सारी सर्च इंजिन हैं जो ऑप्टिमाइज कर रही होती हैं। 75% यूजर्स जो आ रहे हैं इस पे पेज सर्च कर रहे हैं, रिजल्ट कर रहे हैं। अब जाहिर की बात है यूजर्स हम लोग जो हैं अगर हम विजिट कर रहे होते हैं फेसबुक, आजकल हम लोग फेसबुक पे कितनी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, कुछ कोई चीज अच्छी लग रही है उसको ओपन कर रहे हैं, कोई मतलब ये क्या है कि यूजर्स क्या कर रहे हैं, नेवर गो द फर्दर देन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च।
वो कंपाइलिंग जो हो रही होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर उसके का हम दूसरे लिंक खोल रहे होते हैं, अगर हम उसमें हमें कोई और इंटरेस्टिंग लिंक मिल जाता है तो हम उस पर भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यूजर आता है इस चीज पे। उसके बाद क्या है ये 46% ऑफ डेली सर्चेस आर रिसर्च ऑफ द products and services. The more pages you have, the better chance you have ranking high. जाहिर की बात है ऑप्शन ज्यादा होंगे, आप कोई चीज किसी चीज के लिए सर्च कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहे हो, जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे, जितनी ज्यादा आपके पास चांसेस होंगे, जितनी ज्यादा आपके पास वैरायटी होगी, जितने ज्यादा पेजेस ओपन करोगे उतनी उनकी क्या होगी, रैंकिंग हाई होगी। 60% of organic clicks go to the top their organic search results sang on the Do's quote of optimize your page titles. अब वो पेज टाइटल पे क्या करता है, डिपेंड करता है, जाहिर की बात है पेज टाइटल पे ही वो करेगा। अब इस स्लाइड्स को आप थोड़ा देखें। बिजनेस विद द वेबसाइट 401100 pages get 6 times more leads the those who 51 51 से लेके 100, सॉरी ये 1000 नहीं है 100 है, 51 से लेके 100 पेजेस तक ये वर्क कर रहा है, वेबसाइट्स खुल सकती हैं। 236% कंपनीज देन मोर इंडेक्सेस वेब पेजेस गेट 236 मोर लीड्स। ठीक है, अब ये जाहिर की बात है कंपनीज, आप देखेंगे कि सिंपली हम बात करें गूगल की, गूगल पे अगर आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप चलें आइडियाज की वेबसाइट पे चले गए या किसी भी शॉपिंग की वेबसाइट पे चले गए, तो उस वेबसाइट पे क्या सिर्फ आपको तो आइडियाज वालों की ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे? उस पेज पे साइड में, आजू बाजू में, ऊपर नीचे आपको दूसरे भी लिंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या कर रहे होते हैं, ये एड कर रहे होते हैं, ये एडवर्टाइजर्स का तरीका है जो आप लोगों को, वो जो आप लोग गो की मार्केटिंग ही कर रहा है। ये कहाँ गया? ठीक है, अब ये आ जाते हैं वेबसाइट पेजेस पे ही, वो खोलते जाओ कम नहीं होंगे। ये यहाँ पर बोल रहा है 401 से लेके 1000 पेजेस तक हम खोल सकते हैं। 6 टाइम मोर लीड्स देन दूस वेबसाइट्स विद द 51 से लेके 100 तक पेजेस हम खोलते जाएं तो खुलते जाएंगे। कभी हमने ट्राई नहीं किया, कभी ट्राई करके देखिएगा। ये ईमेल मार्केटिंग में क्या है, B2B मार्केटर्स होते हैं, से ईमेल इज द मोस्ट इफेक्टिव चैनल टू जनरेटिंग रेवेन्यू। दवा, अच्छा आप तो जो है ना पता नहीं क्या बोल रही थी, याद है तो बताती हूँ। द वर्ड एक्सक्लूसिव इज ईमेल प्रमोशन कैंपेन इंक्रीज द यूनिक ओपन रेट्स। ठीक है, अब 84% B2B मार्केटर्स यूज सेगमेंट टारगेटिंग इन देयर ईमेल कैंपेन। अच्छा ये क्वेश्चन नोट कर ले, इन द एंड में आपसे ये पूछूंगी कि आप लोगों के लिए वेबसाइट ज्यादा मतलब आप लोगों को अट्रैक्ट करती है, या एज आपसे मैं कस्टमर्स पूछूंगी, एज अ मार्केटर्स नहीं पूछूंगी, एज अ बिजनेस में बिजनेस ब्रांड नहीं पूछूंगी, मैं आपसे एज अ कस्टमर्स पूछूंगी कि आप लोग ज्यादा किस चीज को प्रेफर करते हो, वेबसाइट्स को या फिजिकल मार्केट को? एट द एंड ये मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगी, मुझे याद दिलवाइएगा प्लीज। डिजिटल मार्केटिंग चैलेंजेस, कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग के चैलेंजेस हैं? कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, गवर्नेंस, लॉ एंड रेगुलेशन। अब जाहिर की बात है डिजिटल मार्केटिंग में मैंने आपको शायद ये पहले क्लास में बताया था कि अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपको अपने हार्डवेयर, अपना इंटरनेट, मतलब ये चीजें जो है आपको अपनी रखनी पड़ेंगी। ये आपका सिस्टम अच्छा होगा तभी आप अपनी सर्विसेज अच्छी कर सकोगे, तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर लगेगी। गवर्नेंस, लॉ एंड रेगुलेशन, जाहिर की बात है कॉपीराइट इशू ये सारे तो होंगे ना। तो आप अगर अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट बना रहे हो तो उस पे आपको ये रूल्स रेगुलेशन जो उनके होंगे कॉपीराइट के व्हाटएवर, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कल्चर इशू, यहाँ पर भी कल्चर इशू होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इस बात पे बहुत सेंसिटिव होते हैं, फिर वो कल्चर हो, रिलीजियस हो, इस तरीके से, तो ये इश्यूज भी होते हैं। तो हमें इस ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेक ऑफ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जाहिर की बात है अगर आपके पास ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल नहीं है तो भी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इन चीजों को मतलब ये अपने लिए फैसिलिटेट करना। मार्केटिंग फॉर एंड चैनल ऑनलाइन फॉर शॉपिंग, ठीक है, इसमें क्या करना है कि आपको
फिलोसफीज एंड चैनल ऑनलाइन शॉपिंग। जाहिर की बात है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन आपका चैनल है, उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, फिलोसफीज इसमें बता रहा है, तो आपको अपनी एक क्या कहते हैं कि ये भी आपके लिए टारगेट है कि आपकी ऑडियंस आपकी तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट हो रही है, और कौन सा चैनल, कौन सा मीडियम, कौन सी मार्केटिंग टेक्निक्स आप यूज करो ताकि आपकी ऑडियंस आपके पास आए। शुरू में पहले दिन में कोई भी हिट नहीं होता, आस्ता आस्ता चीजें वायरल होती हैं, आस्ता आस्ता अवेयरनेस होती है, लेकिन ये फिजिकल मार्केट के मुकाबले में डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी सी फास्ट है। fear factor और अनरिलायबल डिलीवरी मैकेनिज्म, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड यूजेज। जाहिर की बात है, सिक्योरिटी की भी बात आएगी इसमें। सिक्योरिटी का पूरा चैप्टर है, वो हम आगे चल के आगे डिस्कस करेंगे। अभी जैसे ये कि हम अभी भी इसी दौर में, मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर्स को कितनी सिक्योरिटी दे रहे हो, उसकी प्राइवेसी कितनी रख रहे हो। ऐसे नहीं कि वो अपना क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है आप लोगों को और उस बेचारे के पूरे पैसे गए, ठीक है, क्योंकि फ्रॉड हो रहे हैं ना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही चीजों को हमने ध्यान में रखना है। तो जितनी ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं वो उतने ही अपने कस्टमर्स को ज्यादा सिक्योरिटी दे रही होती है, ठीक है। उसके बाद how to attract more visitors to your website, how to make a people stay longer and keep coming back and making happy your client with your website design in the first step। जाहिर की बात है, हम लोगों को भी वेबसाइट्स अट्रैक्ट करती हैं। ये एक्सपीरियंस भी हमारा हुआ होगा कि अगर मतलब ऐसी वेबसाइट्स बनाओ कि कस्टमर एक आपके पास आ रहा है, ठीक है, उसको प्रोडक्ट चाहिए, वो वैसे तो नहीं आएगा ना, उसको प्रोडक्ट चाहिए, तो वो अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो इंजॉय करे, आपकी वेब डिजाइनिंग अच्छी हो, ठीक है, इस सारों पे आपका कलर अच्छे हो। ऐसे नहीं हो कि कलर ऐसे आप चूज करें कि कस्टमर बोर हो जाए या उसको अच्छे नहीं लगे, मतलब अट्रैक्टिव बनाए वेबसाइट को। डू नॉट फॉरगेट योर वेबसाइट इज एवरी डे कॉम्पिटिंग टू अटेंशन विद द मिलियन ऑफ अदर एंड नीड फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन टू एनकरेज विजिटर टू स्टे लॉन्गर एंड कीप कमिंग। इसमें यही है कि अपनी जो है, सॉरी, इसमें ये कि अपनी जो आप ये नहीं भूले कि आपकी जो वेबसाइट है वो अगर उस पे वो है, उस पे काम हो रहा है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो आपको क्या करना है, डे टू डे अपने वेबसाइट्स को अपडेट करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया ग्रोसर्स का, तो उनको अगर वो ऑनलाइन सिस्टम रख रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनका ये उनकी ये ड्यूटी है, ठीक है, उन पे उनकी ये लायबिलिटी है कि वो डेली रेट्स अपडेट करें। ऐसा नहीं कि आज मार्केट में वेजिटेबल्स के रेट कुछ और हैं और आप लोगों ने कुछ और रखे हुए हैं। इस तरीके से ये चीजें वेरी कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स ये चीजें देखते हैं। आप अगर एक चीज खरीद रहे हो तो जाहिर की बात है आपको पहले से पता होगा, अगर 1-2 रुपए का फर्क होता है तो इट्स ओके। ये हिना फिर आ गई। If your website is feeling lifeless, here are some tips that could help you win the back lost visitors। जाहिर की बात है, कुछ वेबसाइट्स इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि अब हमें देखते हैं तो हमें मजा आता है, ठीक है। और रनिंग आउट टाइम, ठीक है। पैरालेक्स स्कोरिंग, ठीक है, ये इसके एक टाइप है। क्या हो रहा है, it is the hottest technique in the web design. The term parallax comes from the visual effect of 2D side scrolling video games that use different background images and movement। ये क्या करती है, आपकी जो वेब डिजाइनिंग है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। जो आपके विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, अब ये तो यहाँ पर तो 2D की बात कर रहे हैं, आजकल तो 3D 4D 5D ये सारी आ गई है। डे बाय डे आप देखेंगे कि आपकी विजुअल क्वालिटी क्या होती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है। Parallax design give a website a great opportunity to reinforce website credibility, make a page visits last longer by the encouraging visitors to scroll through the entire page. Take a storytelling approach to guide a visitor
थ्रो द वेबसाइट्स। अब आपने देखा होगा ये यहाँ पर बोल रहा है कि इसका काम ये है कि अपने पेज को ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा बनाएं, इंकरेज करें विजिटर्स को कि वो आए और आपके पेज को विजिट करें, स्क्रॉल करें, ठीक है, एंटायर पेज को। ऐसा नहीं कि आपका पेज ऐसा ही बोरिंग सा बना हुआ है कि आप बस आओ और वहां से अपना काम करने की दिल नहीं करे और भाग जाएं, ठीक है। इसका काम यही है। सिंबल एंड आइकोनग्राफी, ठीक है, सिंबल्स जितने अच्छे आइकन्स होंगे। अब देखिए फेसबुक को क्या जरूरत है, फेसबुक तो हम ये लोग यूज कर रहे होते हैं ना। आपने देखा है कि उसकी भी जो आइकन्स हैं, उसके भी जो सिंबल्स हैं, आए दिन अपडेट होते रहते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा, वहां पर भी अपडेट होते रहते हैं। तो ये भी क्या है कि एक चेंज है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, द यूज ऑफ आइकॉनिक बोल रही हूँ, द यूज ऑफ आइकन्स कैन हेल्प योर वेबसाइट कस्टमर फाइंड व्हाट दे आर सर्चिंग from much more quickly. When you use icon in your text content, paragraph and interface element become more than simple blobs. The text in your website become enjoyable and easy to read. वही बात कर रहा है कि आप जितने अच्छे सिंबल, जितने आइकॉनग्राफी के ऑप्शंस देंगे, उतनी ज्यादा आपके कस्टमर्स को जो है ना वो आसानी भी होगी और वो एंजॉय भी करेगा, टेक्स्ट भी टाइप करेगा तो उसमें मजा आएगा। आजकल हम इतने यूज टू हो गए हैं कि हमें जो है ना चैट भी विदाउट सिमलीज और सिंबल्स के मजा नहीं देती। क्लियर, हम लोग यूज टू हो गए हैं इस चीज के। तो यहाँ पर भी यही बात कर रहा है। Responsive design, it's not only about layout, it should be about the content too. Mobile user don't have time to read long paragraph, so be sure your mobile version is concise. Reading is so small screen is not a fun, it the text so small, so use dynamic type techniques, don't make users zoom। वही बात है कि हम चाहते हैं कि हमें अब आजकल हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, कर ही मोबाइल यूज हैं, शॉपिंग वगैरह भी मोबाइल से करते हैं। उसके लिए हम लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज नहीं करते, मोबाइल पे ही सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये स्लाइड बोल रही है कि आप इसी डायनामिक टेक्निक यूज करें कि जो यूजर आ रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर बड़ा पैराग्राफ आता है ना, हम कोशिश करते हैं 2-3 स्टार्टिंग वाली लाइंस पढ़ के, फिर वो हमें बोर करने लगता है, हम उसे लीव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि छोटी ही चीजों में आप ऐसा मैसेज कन्वे करें, अपना वर्जन को कंसाइज करें, तो ताकि जो बंदा है, जो आपके पास यूजर आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट ले, ना कि वो बोर होके भाग जाए। क्योंकि मोबाइल पे इतना लंबा पढ़ना, वो भी वो चीज पढ़नी जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो इट्स अ बिग टास्क। ठीक है, gamification, the reason to include gamification in your marketing strategy is gamification is a digital strategy practices helping to increase user loyalty by the using gaming dynamic. Let's the user use something they like a way increase the engagement. ये क्या करता है,